کلام حق کی تعظیم کے لیے اور خدا ان کے بندہ کے لیے زوردار تالیاں بجائے ہوئے. مسیح سے میں آپ سب کو سلام، سب کو سلام، سب کو سلام. خدا کا شکر ہو آج اس خوبصورت دن کے لیے وہ ہمارے لیے موسموں کو بدلتا اور حالات کو بدل ڈالتا ہے. آمین. پلس جیسس. کلام شروع کرنے سے پہلے میں التماس کروں گا آپ سب سے کہ جو رات کو یہ سوچ رہے تھے کہ صبح جا کے میں خاص مقصد کے لیے دعا کرواؤں گا، وہ مجھے پہلے اپنا ہاتھ دکھائیں. اور بھی تھی اور بھی سوچے ہو جائے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. اچھا کیا مقصد تھا؟ اور کھڑے ہو کے دسنا پڑے گا کون، پھر میں تھوڑا سا دعا کرا. آمین. ایک منٹ آپ کھڑے نہیں آپ. چھوٹے بھائی کا بیٹا وہ بھی ایک اور بہن ہے. او جی بھائی جی. سسٹر بیمار ہے، اس کے لیے سسٹر بیمار ہے. ایک اور زندگی ہے. نہیں آپ نہیں ہیں، وہ آپ کے علاوہ ایک اور ہے. ایکچولی میں رات کو نوید بھائی کھڑے رہیں گے. میں رات کو نا تقریباً 1:30 پر دعا کر رہا تھا. اس وقت پہلے ہم نے یہاں پر 9:20 پر دعا کی تھی. تو خدا نے مجھے کہا تھا کہ ایک عورت آئے گی اور وہ اپنے بچے کی وجہ سے بڑی پریشان ہوگی اور تو اس کے لیے دعا کرنا. یہ میں ٹائم لکھا ہوا 9:20. وہ آپ جو کھڑی ہیں. پھر ایک اور عورت ہے، وہ مجھے پتہ نہیں آپ کیوں نہیں اٹھ کھڑی ہو رہی. وہ اپنے بچے کی وجہ سے، وہ چھوٹا ہے، ان کا بچہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کی وجہ سے وہ بڑی پریشان ہے. ایک پاسٹر سلیمان کے لیے میں نے آج دعا کرنی ہے. پاسٹر سلیمان آپ کے لیے مجھے خداوند نے اسپیشل پیغام دیا آج. یہ رات کو 1:30 پر خداوند نے مجھے دیا. پھر ایک بیٹی ہے، شادی شدہ نہیں ہے، وہ کماری ہے، اسے عورتوں کی بیماری ہے، تو اسے خداوند نے آج شفا دی. یہ میں نے لکھا ہوا ہے اس لیے کیونکہ رات کو میں نے یہ ایک اور پیج پہ لکھا تھا، وہ بھی میرے گھر میں پڑا ہوا ہے. تو میں یہ آپ کو اس لیے بتاتا ہوں یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ بلیو نہیں کرتے کہ خدا بولتا اور کلام کرتا ہے. آمین. لیکن خدا بولتا اور کلام کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو کریکٹ وہی بات بتاتا ہے جو معاملہ ہوتے ہیں. آمین. آپ بیٹھیں گے، اب ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. ایک بیٹی ہے یہاں پر، وہ عورتوں کی بیماری میں ہے، اس کے لیے میں نے دعا کرنی ہے. بھائی نوید کے لیے دعا کرنی ہے. اور ایک اور چیز، مجھے بھائی عمران کے لیے دعا کرنی ہے. بھائی عمران اور ان کی مسز کے لیے. ان کا معاملہ ہے، کل رات کو 1:30 بجے جب میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا تو ان کو میں نے، بھائی سلیمان آپ کی گلی نہیں، چھوٹی سی گلی، اس کے اندر ان کو میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا پریشانی میں. اور مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی اور وہ مجھے بڑی سخت آواز لگی. خدا نے مجھے کہا کہ عمران کو کہہ کہ اگر آج نہیں تو کبھی بھی نہیں. بڑی سخت آواز مجھے لگی. تو مطلب کچھ ایسی خدا باتیں کرتا ہے جو مطلب وقتی طور پر ہمیں بڑی سخت لگتی ہیں، لیکن وہ ہماری نجات کے لیے کلام کرتا ہے. ہمیں میں کل رات کو تقریباً 2 بجے تک دعا کرتا رہا ہوں، کلام پڑھتا رہا، اس کے بعد میں دعا کرتا رہا اور کافی لوگوں کے لیے خدا نے مجھے الگ الگ سی طرح کی باتیں کہیں اور وہ مجھے
دل میں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ خدا کا شکر، میں چاہوں گا ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں شکر اور خدا کا شکر کریں گے۔ خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تیرا روح اقدس جس طور سے اعمال کی کتاب میں تیرے رسل کے ساتھ کام کرتا تھا ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ جیسس، سب دعا کریں گے، اس مقصد کے لیے دعا کریں گے۔ پریز جیسس، ہاللویا۔ دعا کریں گے، اپنے لبوں کو کھولیں گے اور دعا کریں، شکر کریں گے، سب دعا کریں گے۔ کہ قدوس خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو بہت اور کلام کرتا ہے، تیرے روح کی آگ، تیرے روح کی حضور تیرے لوگوں پر موجود ہے اور تو بولتا اور کلام کرتا ہے۔ ہم تیری تمجید اور تیری ستائش کرتے ہیں۔ Praise the Lord Jesus, praise the Jesus, praise hallelujah, 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 hallelujah۔ تیری تمجید اور تیری ستائش تجھے مبارک کہتے ہیں۔ او باپ سمانی میرے مالک، تو اپنے پورے وقت پر اپنے لوگوں کو برکت بخش دیتا ہے۔ تیری تمجید کرتے ہیں، تو رحم کر اور روح القدس کے زور میں آگے بڑھا، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے۔ میں چاہوں گا آپ کلام کے شروع میں دعا کریں گے اور یہ دعا پاسٹر سلیمان کے ساتھ مل کر کریں گے۔ پریز دی لارڈ جیسس، ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ قادر مطلق زندہ جلالی ابدی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم تیرے لوگ اور تیرے چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، اور آسمانی خدا ہم تیرے لوگ تیرے کلام کی وجہ سے ہیں۔ اے قادر مطلق آسمانی خدا آج پھر اپنے بندہ کو اپنے کلام کے لیے کثرت سے استعمال کرنا، اور آسمانی خدا ہمارے روح کو، ہماری اسپرٹ کو تازہ کرنا، اور آسمانی خدا ہمیں برکت دینا، روح کے زور میں آگے بڑھانا۔ تیرے بندہ پر کثرت سے تیرا جلال، مسا اور برکت کو مانگ لیتا ہوں خدا یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ سب کہیں گے ہاللویا، پھر کہیں گے ہاللویا۔ خدا ان کا شکر ہو خدا ان کی بہتی حضوری کے لیے، اور ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ بہت بار کلام کرتا ہے۔ میں نکالیے خدا ان کے پاک کلام میں سے آموس کی کتاب، آموس نبی کی کتاب۔ انبیاء میں، چھوٹی انبیاء ذاتوں میں ان کے کتابیں ہیں، اور ابدیہ سے پہلے آموس کی کتاب آئے گی، اور اس کا 5واں باب اور اس کی آخری 2 آیات خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ آخری 2 آیات ہوشیہ کے بعد اور ابدیہ سے پہلے، آموس کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی آخری 2 آیات خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے، بلکہ 25ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ لکھا، اے بنی اسرائیل، کیا تم 40 برس تک بیابان میں میرے حضور ذبیحے اور نذر کی قربانیاں گزرانتے رہے؟ تم تو ملکوم کا خیمہ اور کیوان کے بت جو تم نے اپنے لیے بنائے اٹھائے پھرتے تھے۔ پس خداوند جس کا نام رب الفاج ہے فرماتا ہے، میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا۔ بائبل مقدس میں آج ہم جس آیت پر غور کریں گے، تم تو ملکوم کا خیمہ اور کیوان کے بت جو تم نے اپنے لیے بنائے اٹھائے پھرتے تھے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں جب ہم اس دور کو دیکھتے ہیں جس دور میں خدا کا بندہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر خدا کے جلال کے نیچے جا رہا تھا، وہ ملک کنعان کی طرف سفر کر رہے تھے، لیکن آموس ایک چرواہا جو ایک پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، جب یہ خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم لوگ جو اسرائیلی قوم تھے، تم عہد کے صندوق کو تو اٹھا کر لے کر جا ہی رہے تھے، لیکن جہاں پر تم نے خدا کا خیمہ اٹھایا ہوا تھا، وہاں پر تم نے ملکوم کا بھی خیمہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس کا مطلب خدا کا روح آموس کو وہ باتیں بتا رہا تھا جو دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے۔ یہ شاید وہ جانتے تھے لیکن وہ اتنے بے خوف ہو کر بیان نہیں کر پائے جو بات خدا کا بندہ آموس نے بیان کی۔ اور یہ ملکوم کا خیمہ جو ہے یہ امونیوں کا دیوتا ہے، اور اس کا خیمہ بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور یہ وہ بھی ساتھ لپیٹ کر لیے جا رہے تھے۔
किवान के बुत मलकूम का खैमा। और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सुलेमान बादशाह ने अपनी बीवियों के लिए मलकूम का मंदिर भी बनवाया था यरूशलेम की जो पहाड़ियों पर, जैतून के पहाड़ पर, क्योंकि वो अपनी बीवियों को खुश करना चाहता था। उसने उनके लिए ये मंदिर भी बनवा दिया। वो हैकल बनवाने वाला था जिसको खुदा ने हैकल के लिए ही स्पेशल इस जमीन पर पैदा किया, और एक बड़ी सल्तनत जो खुदा चाहता था उसके वसीला से वो सल्तनत कायम भी की। लेकिन उसने और भी बहुत से गलत काम किए। थोड़े दिन हुए, एक मौलाना साहब हैं, वो कहते हैं हम बाइबल को इसलिए नहीं मानते क्योंकि बाइबल नबियों के गुनाहों को जाहिर करती है। तो बाइबल जो खुदा का कलाम है वो कोई इंसान कहने वाला नहीं है, वो खुदा कहने वाला है। आमीन। और उसकी निगाह में चाहे कोई नबी हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे रसूल हो, चाहे पादरी हो, चाहे मुअल्लिम हो, चाहे आलम हो, कोई भी हो, जब उसके सामने वो गुनाह करता है तो वो उसके गुनाह को जाहिर करता है। ये खुदा का काम है। खुदा डरपोक नहीं है कि या वो कह लीजिए कि वो पाकिस्तानी अदालत का जज नहीं है कि वो किसी अमीर के सामने तो कहे कि ठीक है तूने गुनाह किया फिर भी तू माफ, और गरीब को कहे कि मैं तुझे तख्तेदार पर लटका दूंगा क्योंकि तूने गुनाह किया है। हमारा खुदा अजीम और कुल कायनात का खालिक और मालिक है। वो ऐसा खुदा है जिसने चट्टानों की बुनियाद पानियों पर रखी है। आमीन। और जिसने समुद्रों के जो किनारे हैं उनको उसने रेत से बंद किया हुआ है। ये अजीम बात है। आज तक कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है जो रेत से पानियों के बंद बांधे। ये वाहिद खुदा ही है जिसने समुद्रों के बंदों को रेत से बांधा हुआ है। आमीन। और वो अपनी हदूद को छोड़ नहीं सकता। और ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है जो पानियों के ऊपर चट्टानों को, पहाड़ों को खड़ा कर दे। ये खुदाए अजीम ही है जिसने केटू और माउंट एवरेस्ट तरह के पहाड़ ऊंचे बनाकर भी उनको पानियों के ऊपर ठहराया हुआ है। आमीन। उससे बड़ा कोई भी नहीं है। और वो जिसमें गुनाह देखता है वो साबित करता है कि इसमें गुनाह है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो लोग जो खुदा के तख्त के, खुदा के जलाल के नीचे नीचे जा रहे थे, जो रात को शोलों की सूरत में और दिन को बादल की सूरत में खुदा का जलाल उनके ऊपर जा रहा था, वो उनके लिए आगे जंग भी करता था। और बाइबल में यहां तक लिखा है कि खुदा उनके लिए रहने की अच्छी जगह या डेरे लगाने के लिए अच्छा पॉइंट भी ढूंढता था। वो ऐसा खुदा था जो आसमान पर से मन को बरसाता था। ना उनको सर्दियों में सर्दी लगती थी, ना गर्मियों में गर्मी लगती थी, ना उनके कपड़े मैले होते थे, ना उनकी झुग्गियां टूटती थी, ना उनके बच्चे बीमार होते थे, ना उनके ऊपर कोई वबा आती थी। जब तक वो कोई गुनाह नहीं कर लेते थे वो तमाम के तमाम बड़ी तंदुरुस्ती और सेहतयाबी में खुदा के जलाल के नीचे नीचे जा रहे थे। लेकिन उनका ध्यान फिर भी अपने देवताओं की तरफ था। ऐसे आज के दौर में हम मसीह होते हुए, हम खुदा के रूह कुदस के ताबे होते हुए भी हमारा ध्यान उन बुतों या उन गुनाहों की तरफ लगातार रहता है जो हमें हर रोज खुदा के हुजूर से जुदा करते रहते हैं। और वो गुनाह हमारी ख्वाहिशात की वजह से, वो गुनाह हमारे अंदर छिपे हुए हैं और वो लेकर हम इबादत भी करते हैं, वो लेकर हम कुर्बानियां भी चढ़ाते हैं, वो लेकर हम प्रस्तिश भी करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ खुदा ने कि बनी इस्राएल, क्या तुम 40 बरस तक बेअबान में मेरे हुजूर ज़बिये और नज़राने और कुर्बानियां ना करते रहे? वैसे जैसे हम करते हैं वो भी कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ वो गुनाह भी कर रहे थे। और हम भी प्रस्तिश और सताइश को सब कुछ करते करते साथ हम गुनाह भी कर रहे हैं। और खुदा इसी से हमें बाज रहने की तलकीन करता है। आमीन। खुदा चाहता है कि हम इसी को छोड़कर सही राह पर खुदा के साथ चले।
बाइबल मुकद्दस में वास की किताब 9 बाब 10 आयत में लिखा है, जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भरकर, क्या कर, मकदूर भरकर, जिनके बहुत सारा काम, ज्यादा काम जितना कर सकता है, क्योंकि पताल में जहां तो जाता है वहां ना काम है ना काज, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। आमीन। क्योंकि कभी किसी ने नहीं देखा कि कोई मुर्दा जिसकी कब्र हम कच्ची बना कर आए और वो पीछे 1 साल के बाद जाए तो उसने अपनी कब्र को खुद पक्का किया हो। कोई ऐसा है? या उसने अपने अंदर लाइट लगा ली हो, या उसने बाहर लैंडर डाल दिया हो? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां ना काम है, ना काज, ना इल्म, ना हिकमत, वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां पर हमारी रूह फक्त इंतजार में है अपने अब्दी सुकून या अब्दी हलाकत के लिए। वो 2 पॉइंट के दरमियान में इंतजार करती है। और यही बात खुदा का बंदा आवाज कहता है, जो काम तेरा हाथ करने को पाए। जब तक हम खुदा के जलाल के नीचे हैं, जब तक हम कलीसिया में हैं, जब तक हम खुदा के साथ जिंदा हैं, जब तक हम उसके साथ चल रहे हैं, तो फिर हमारा हाथ बेहतर करे। आमीन। फिर हमारा हाथ कोई अच्छा काम करे और मकदूर भर कर करे। आमीन। और मकदूर भर कर करे। आगे मैं निकालिए बाइबल में से यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 6वां बाब, यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 6वां बाब बाइबल मुकद्दस में से, और उसकी 5 आयत से खुदा के पाक कलाम से पढ़ेंगे। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद जो है वो एक झील है जिसका नाम तिब्रियास की झील है। यानी गलील की झील को तिब्रियास की झील कहा गया है। उसकी वजह यह है कि जो इसका किनारा तिब्रियास को लगता था तो उसको तिब्रियास की झील कहा जाता था, और जो गलील को लगता था इधर से उसको गलील की झील कहते थे। बाइबल मुकद्दस में 5 आयत में लिखा है, बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। मगर थोड़े से बच्चों को कंट्रोल करेंगे, पीछे चले जाओ, पीछे, बिल्कुल पीछे चलो, जाएंगे उठ के अपनी मां के पास तो पीछे बैठ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह नासरी बिल्कुल ईद फसह नजदीक थी, तो यीशु पहाड़ पर चढ़ा और अपने शिगिर्दों के साथ वहां बैठा, और यहूदियों की ईद नजदीक थी। बस यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है। क्या आ रही है? बड़ी भीड़ आ रही है। और यीशु ने फिलिप्पस से कहा कि हम इनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। तो यीशु मसीह नासरी के सामने उसका शिगिर्द जो फिलिप्पस है वो कहता है, इनके लिए हम खाने का इतने लोगों के लिए कैसे बंदोबस्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 200, यहाँ पर लिखा है खुदा का बंदा फिलिप्पस ने 7वीं आयत में कहा, फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी। कितने दिनार की? 200 दिनार की। उस दौर में 1 दिनार एक आदमी के पूरे दिन की मजदूरी इतनी की है। अगर हम बाइबल को उसको पढ़ेंगे, यीशु ने मजदूर जो काम पर लगाए उनकी 1 दिन की, जो 1 दिन के रुपए थे उनको मिलते, वो कितने थे? 1 दिनार। तो यहाँ पर 200 मजदूरों की जो कमाई है वो भी इन लोगों को खाना नहीं खिला सकती। इतना पैसा लगाने के बावजूद ये लोग खाना नहीं खा सकते, इनके पेट भर नहीं सकते। तो यीशु मसीह नासरी ने उसको मशवरा दिया कि तुम इन्हें खाने के लिए, इनके लिए कुछ कीजिए। यहां पर मैं ये कहूंगा कि ऐसे ही है जैसे मैं और आप, हम सब कलीसिया में मौजूद हैं और हम सब अपने आप को मसीह यीशु के शागिर्द कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मसीह यीशु के शागिर्द कहते हैं। और जब पर यीशु फिलिप्पस को सवाल करता है, वहां पर यीशु मुझे और आपको भी सवाल करता है। अभी हमने जो बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा वो है वर्स 9 और 10 है।
की बरकत को लाएं। तो बाइबल मुकद्दस में फिलिप्पस ने कहा कि खुदावन मैं तो कहता 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए काफी नहीं है। उसके शागिर्दों में एक और शागिर्द था, शमौन का भाई, शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने। उसने कहा यहाँ एक लड़का है। कितने लड़के हैं? एक लड़का है। उसके पास क्या है? 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है 9वीं आयत में लिखा है यहाँ एक लड़का है जिसके पास चौरों की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। मगर ये इतने आदमियों में क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 तक बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बात जो खुदा चाहता है, जो हमने पिछले इतवार सीखी और उससे पिछले इतवार सीखी, वो है शुक्रगुजारी। इस मोजा का जो की पॉइंट है वो 2 है। एक है जिसके पास जो है उसने दे दिया और जिसको दिया उसने उसके ऊपर शुक्रगुजारी कर दी। हालेलुया। यहाँ पर 2 पॉइंट हमें बड़े मिलते हैं। पहला है शागिर्दों का पॉइंट। शागिर्दों ने रिसर्च की कि यहाँ पर हमारे पास क्या है और जो कुछ उनके पास था उन्होंने कहा खुदा हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, वो भी एक बच्चे के पास है। यीशु ने कहा ठीक है, लेकिन यीशु ने उसके ऊपर शुक्रगुजारी की और उसको बरकत दी। शुक्रगुजारी से यहाँ पर यह मुराद है कि यीशु ने शुक्र किया कि बाप मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि हमारे पास इतना है कि ये बढ़ सकता है। हालेलुया। हमारे पास इतना है कि ये बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात होती है शुक्रगुजारी। पिछले इतवार हमने सीखा कि शुक्रगुजारी करने से हमारी स्टेज चेंज हो जाती है, शुक्रगुजारी करने से हमारी बरकत बढ़ जाती है। और यहाँ पर यीशु मसीह नासरी ने अपने शागिर्दों को यही सिखाया कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मकदूर भर कर दो, और जो तुम मकदूर भर करोगे जब उसके ऊपर शुक्रगुजारी होगी तो वो और बढ़ जाएगी। हालेलुया। और यहाँ पर ऐसा हुआ। अगर हम बाइबल मुकद्दस में इस मोजा को मत्ती रसूल की अंजील में देखें 14वें बाब पर 15 और 16 आयत में, तो वहां पर लिखा है कि उसे जब शाम हो रही थी, क्या हो रही थी? शाम हो रही थी। ये जो वक्त था ये शाम का वक्त था, यानी कि दिन ढल रहा था। क्या हो रहा था? ये दिन ढल रहा था। अगर हम वक्त के हिसाब से इस मोजा को देखें तो ये मोजा अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी दिन ढल रहा है। जब यीशु ने पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं अमाल की किताब में, जब वो रूह कुदस से अमाल 2 बाब में मामूर होते हैं तो उन्होंने एक बात कही थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लोगों ने कहा कि पतरस और उसके लोग जो हैं ये तो ताजा मह के नशा है। लेकिन पतरस ने कहा अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है, अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है। इसका मतलब यीशु मसीह नासरी जिस मोजे की वो बात कर रहा था वो था 5वां दिन ढल रहा था। और 6वां दिन तब शुरू हुआ जब अमाल की किताब में खुदा का रूह कुदस लोगों पर नाज़िल हो गया। उस वक्त शाम हो रही थी। और बाइबल मुकद्दस को अगर हम पढ़ेंगे तो बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना 9 बाब 4 आयत में लिखा है जिसने मुझे भेजा है हमने उसके काम दिन को करना है। हालेलुया। हमें उसके काम कब करने हैं? दिन को। लेकिन वहां पर यीशु ने ये कहा कि मुझे अकेले को करना है। उसने कहा हमें ये काम करने हैं, हम सबको ये काम करना होगा। हमें दिन को ये काम कंप्लीट करना होगा। और ये जिम्मेदारी का काम है। किसी के पास जिम्मेदारी है एक लड़के को ढूंढना जिसके पास रोटियां हो। एक का काम है उनको ढूंढकर मसीह यीशु के पास लेकर आना, और मसीह यीशु का काम है बरकत देना, और फिर उनका काम है उनको तरतीब से बैठाना। आमीन। यहाँ पर सब के लिए कोई ना कोई काम है, यहाँ पर सब के लिए कोई ना कोई मेहनत का काम है। और यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है जो तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर करने से मुराद ये नहीं कि आप सिर्फ इतवार को आए और आकर बैठ जाएं। नहीं, ये काम नहीं है। सिर्फ आकर बैठना काम नहीं है। या जिस
जिम्मेदारी देती है। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको एक बेहतरीन काम करने की जिम्मेदारी देती है और हमें इस काम को पूरे वक्त पर करना होगा। और यहाँ पर काम मेरे और आप सबके लिए है, सबके लिए सबसे बड़ा काम है दुआ, जो हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। पौलुस रसूल इस बात को इस तरह से बयान करता है, वो कहता है बिना दुआ करो और खासकर अपने मुकद्दसों के लिए दुआ करो। हालेलुया। सबसे बड़ा काम मेरे और आपके लिए है कि हम दुआ करें ताकि जितने लोग मसीह के पहाड़ की तरफ जाते हैं उनकी जरूरियात हम पूरी कर पाए। आमीन। कल रात को जब मैं दुआ कर रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए बात खुदा कर रहा था और मैं उन बातों को सब टाइम खुदा का बंदा पास्टर सुलेमान मुझे नीचे बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, मुझे नाराल पूछते हैं, भाई जमीर खुदा ने कुछ क्या किया। बहुत दफा हम ये कहते हैं, तो कई दफा मैं बता देता हूँ, कई दफा मैं बताता नहीं, मैं चुप करके घर जाकर ना अपनी डायरी को पढ़ के देता हूँ कि फलां बंदे के लिए खुदा ने मुझे ये कहा है। तो फिर मैं उस बात को जब लिख लेता हूँ तो उनके लिए मैं दुआ करना शुरू करता हूँ। बड़े लोगों के लिए मेरे पास बात लिखी हुई है, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनकी जिंदगियों के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए। फिर मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे खुदा ने मुझे कहा है जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर, और मुझे मकदूर भर उसको काम करना है। और याद रखिए अमाल की किताब को सब पढ़िए, वहां पर पूरी कलीसिया काम करती है। कोई गवाही का काम करती है, कोई दुआ का काम करती है, कोई इंतजाम का काम करती है, सब लोग काम करते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना है। ये नहीं लिखा मुझे उसके काम, लिखा हमें उसके काम। आमीन। मुझे और आपको उसके काम करना है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस को मुकाशवा की किताब पढ़ेंगे तो लिखा है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। क्या कर? थामे रहे। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे ताकि कोई तेरा ताज जिंदगी का वो तुझसे कोई छीन न ले। इसका मतलब हमारा ताज जब छीना जाता है वो तब छीना जाता है जब हम गैर जिम्मेदार होते हैं। गैर जिम्मेदार का ताज छीन लिया जाता है। बाइबल मुकद्दस में उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको मिलेगी साउल बादशाह की। साउल बादशाह को खुदा ने जो कलाम दिया, जो स्केच से दिया, उसने उस स्केच के ऑपोजिट काम किया। जब ऑपोजिट किया तो आपके खुदा का बंदा सैमुअल को कहता है तू मेरी इज्जत कर क्योंकि मैं बादशाह हूं। और उसने कहा कि तेरी मैं क्या इज्जत करूं क्योंकि तूने खुदा के कलाम की इज्जत नहीं की। और उसे क्या छीन लिया गया? उसकी बादशाहत। और अगर हम यिर्मयाह नबी का नोहा पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है हमने गुनाह किया और हमारे ताज हमारे सर पर से गिर पड़ा। और ये एक स्टोरी है साउल बादशाह की कि जब उसे कत्ल किया गया ना, मारा गया, जब उसने अपने पेट में वो अपनी ही तलवार पर जब वो गिर गया, बाइबल में क्या वो अपनी तलवार पर खुद गिरा और उसने अपने आप को खुद मारा। लेकिन दाऊद को एक आदमी मिलता है 2 दिन के बाद, तो वो कहता है नहीं वो उस वक्त जिंदा ही था, तो उसने मुझे कहा कि मेरा गला काट दे, तो मैंने उसके गले के ऊपर मारा और वो बादशाह मर गया। तो दाऊद को गुस्सा आया उस लड़के के ऊपर जिसने ये कहा। वो कहता कि तेरा हाथ क्यों ना डरा कि तूने मंसूर को कत्ल किया। तो वो मंसूर का अगर हम स्टोरी इसकी देखें तो वहां पर लिखे कि उसके जो सर के ऊपर जो ताज था वो जमीन पर गिरा और वो लुढ़कता हुआ सीधा जाकर वो गैर कौमों के बादशाह के पांव में जा गिरा। तो जब हम खुदा के काम को बेहतर तरीके से नहीं करते, ऐसा तरीके से नहीं करते, तो हमारा जिंदगी का ताज गिर जाता है और फिर हम परेशान होते हैं। और अपनी जिंदगी के ताज की मुहाफजत करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपनी जिम्मेदारी पर काम कीजिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर हम हिजकिय्याह 22 बाब और 20 आयत पढ़ेंगे तो लिखा है मैंने उनके दरमियान में तलाश की। मैंने उनके दरमियान में क्या की? तलाश की। खुदा आज भी जिस तरह से वो छोटे लड़के की तलाश कर रहे थे कि यहाँ पर कोई एक ऐसा शख्स मिले जिसके पास कुछ ना कुछ तो खाने को हो, इस तरह खुदा आज भी जिम्मेदार लोगों की कलीसिया में तलाश करता है। वो आपके घर के बारे में रात को मुझसे कलाम करे, खुदा के बंदा पास्टर सुलेमान से कलाम करे, लेकिन वो आपको घरों में आपके घरों की तलाशियां लेता है। वो देखता है कि कौन है जो मेरी गवाही दे सकता है, कौन है जिसकी जिंदगी में मैं मौजूदा करूंगा और वो मेरा जिम्मेदार शख्स बनेगा। और यहाँ पर खुदा के
लोग उस बच्चे की तलाश कर रहे हैं लोगों में। 5000 लोगों में सिर्फ एक बच्चा उन्हें मिलता है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनके पास छोटी बरकत या बड़ी बरकत कुछ ना कुछ हमारे पास है, लेकिन हम वो मसीह यीशु के सामने पेश नहीं करते। अगर हम बाइबल मुकद्दस को बड़े ध्यान के साथ पढ़ेंगे तो जो आपके पास थोड़ा हिस्सा है वो आप खुदावंद को दीजिए, खुदावंद उसको बहुत बड़ा हिस्सा बना देगा। आमीन। अगर हम आज उस बच्चे को याद करते हैं तो उसकी 5 रोटियां 5000 लोगों को खिलाई गई है। हालेलुया। एक बच्चे की 5 रोटियां कितने लोगों को? 5000। इसका मतलब है एक रोटी 1000 के बराबर है। एक रोटी कितने के बराबर? 1000 के बराबर। और मेरे ख्याल से बाइबल में लिखा नहीं हुआ कि खुदावंद के हुजूर एक दिन 1000 साल के बराबर। हालेलुया। कहां पर बात छुड़ गई? एक दिन 1000 साल के बराबर है, बाइबल में लिखा है। और अगर आप सलातीन की 18वें बाब को पढ़ेंगे, पहली सलातीन, और वहां पर लिखा है कि उस बेवा ने, उसके पास कितना था? मुट्ठी भर। कितना था? मुट्ठी भर। और उसने वो मुट्ठी भर किसको दे दिया? किसको दिया? जो उसके पास खादम थे, जो उसके पास खुदा का रूह जिसके अंदर था, उसने वो मुट्ठी भर उसको दिया। लेकिन अगर वो उसके पास होता तो वो उसकी मौत का सबब बनता, क्योंकि उसने खुद कहा था कि मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन उसने वही मुट्ठी भर उठाया और उसको पकाया, और पकाने के बाद वो खुदा के नूर पेश करती है, खुदा के बंदा के सामने पेश करती है। लेकिन वहीं पर से खुदा की बरकत उसकी जिंदगी में जारी होती है। हालेलुया। और वो कहता है कि तू ना तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा, ना तेरे मटके में से आटा खत्म होगा, जब तक अकाल खत्म ना हो जाए। और याद रखिए, वहां से एलिया वापस चला जाता है, लेकिन वहां से तेल और आटा खत्म नहीं होता। आमीन। ये नहीं मुझे पता कितनी देर के बाद, एलिया के वहां जाने के बाद कितनी देर के बाद दोबारा बारिश हुई, या बारिश होने के फौरन बाद गंदम तो पैदा नहीं होगी, कम से कम 1 साल के बाद पैदा हुई होगी। लेकिन वो अगला साल भी वो औरत उसी में से खाती रही जो उसने खुदावंद की नजर किया था। हालेलुया। वो अपने देवताओं को छोड़कर, वो अपने मलकून को छोड़कर, वो सदानियों के देवताओं को छोड़कर, बाल को छोड़कर खुदा के हुजूर अपने नजराने पेश करती है, और खुदा उसके लिए बरकत को पैदा कर देता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में अगर हम आगे पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ मत्ती 6 बाब में कि यहाँ पर एक कीड़ा खराब करता है। क्या करता है? कीड़ा खराब करता है और चीजों को संग लग जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू अपना माल आसमान पर जमा कर, वहां ना कीड़ा खराब करता है, ना चोर नकब लगाता है, ना वहां पर संग लगता है। इसका मतलब हम अपने पास जो कुछ इकट्ठा करते हैं वो खराब हो सकता है, लेकिन आपका थोड़ी चीज जो आप समझते हैं कि ये मेरे पास खराब हो जाएगी, वो आप खुदावंद को दीजिए। फिर देखिए खुदावंद उसको मल्टीप्लाई करके इस कदर आपके लिए बरकत को बनाता है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बातों को? और खुदावंद ऐसा करने की कुदरत रखता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में दूसरा सलातीन पढ़े, दूसरा सलातीन के, इसके ऊपर मैंने कलाम भी सुनाया हुआ 4 बाब 2 आयत में। और बाइबल में मुकद्दस में आज भी अगर खुदावंद कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, यही बात खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कही कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास है उसे दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि बेवा आती है और वो कहती है, अलीशा बाहर कर्जदार खड़े हैं, बाहर मुसीबतें खड़ी हैं, बाहर मुझे गुलाम बनाने के लिए, मेरे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए खड़े हैं। तो उसने कहा तेरे पास क्या है? याद रखिए, खुदावंद जब आपको बरकत देना चाहता है तो सबसे पहले आपसे ये पूछता है, बता तेरे पास क्या है, आपके पास क्या है। और याद रखिए, यीशु मसीह नासरी ने भी यही कहा। यीशु ने कहा, फिलिप्पस इनके लिए बंदोबस्त कीजिए, इनके लिए खाने का बंदोबस्त कीजिए। एक्चुअली डायरेक्टली बात ये थी कि आपके पास क्या है? क्या आपके पास रूहानियत है? क्या आपके पास दुआ है? क्या आपके पास रोजे हैं? क्या आपके पास रफाकत है? क्या आपके पास बरकत है? क्या आपके पास खुदा का रूह मौजूद है? क्या आपके अंदर कलाम है? जो कुछ आपके अंदर है, खुदा उस बरकत को
रुकी जब ये खुद रुक गई, जब इनके पास कोई जगह ही ना रही। लेकिन अगर 1 साल और कहर पड़ता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बेवा भूखी मरती, वो बरकत को पाए रखती। आमीन। जो कुछ आपके पास है उसे थामिए। बाइबल में लिखा है 1 दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस 1 दिन के बराबर। बड़ी खूबसूरत आयत है। अगर हम मसीह यीशु को 1 दिन में 5 मिनट देंगे तो वो हमारी रूहानी लाइफ को कितना बढ़ा सकता है। समझिए हमारी बात को। अगर हम खुदावंद को इतवार का दिन देते हैं तो वो हमें 1000 साल बादशाह देता है। अंडरस्टैंड कीजिए। अगर हम खुदावंद को इतवार का दिन देते हैं कि खुदावंद आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरी प्रस्तिश करूंगा, मैं तेरे गीत गाऊंगा, मैं तुझे धन बात कहूंगा, तो वो मुझे 1000 साल बादशाह का दरवाजा खोल के कहता है कि आ बेटा तूने 1 रोटी दी है, मैं तुझे 5000 को खाने की कुव्वत देता हूं। आमीन। हालेलुया। तो अपने 1 दिन को खुदावंद के हुजूर मुकर्रर कीजिए, 1 लम्हा को मुकर्रर कीजिए। वो आपके एक लम्हा को बरकत पर बरकत देने की कुदरत रखता है। याद रखिए बाइबल मुकद्दस में से हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के दर्जे तक पहुंच गया। उसने चंद लम्हे दीवार की तरफ मुंह करके रोया। उसने कहा खुदावंद तू मेरी जिंदगी को बढ़ा दे। तो उसके चंद लम्हे 15 साल बन गए। हालेलुया। चंद लम्हे 1.5 साल लगते हैं। तो आपके चंद लम्हे आपकी बहुत बड़ी बरकत बन सकते हैं। लेकिन जो कुछ आपके पास है आप खुदा के हुजूर नजर करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, खुदावंद को देने की कोशिश कीजिए। जो आपका काम है वो दीजिए, वही बढ़ना शुरू हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मेरी तरफ अपने हाथ को बढ़ा, और मरकज की किताब में लिखा है उस शख्स ने अपना सूखा हाथ बढ़ा दिया और वो सूखा क्या हुआ, तंदुरुस्त हो गया। इस बात से सीख रही जो आपके पास बहुत कम चीज है वो खुदावंद को दीजिए, वही सूखा हरा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो हरा करने की कुदरत रखता है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और कलाम को अपने दिल में रख के जो लोग आज अहद करते हैं खुदावंद के साथ कि खुदावंद मैं तेरे हुजूर आपको कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। जरूरी नहीं कि आप पैसा दें, आप टाइम दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप टाइम दें, आप अपने घर में खुदा के लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। कुछ ना कुछ जो करना चाहते हैं, जो आज पक्का अहद करेंगे, वही अपने कदमों पर खड़े होइएगा और अपने लिए दुआ करना शुरू कीजिएगा। कहिएगा खुदावंद मैं उन 5000 मर्दों में से एक हूं जिसके पास थोड़ा सा है, लेकिन आज मैं अहद करता हूं कि आज से ये वाला हिस्सा मैं तुझे दूंगा, और खुदावंद उसी हिस्से में बरकत देना शुरू करेगा। जो आपके पास बहुत कम है और जो सिर्फ आपका है वो आप दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कीजिए, खुदावंद उसमें आपको बरकत देना शुरू करेगा। वही लोग खड़े हों जो आज अहद कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है फरिश्ता के हुजूर भूल चूल नहीं होती, ना हम खुदावंद के हुजूर कुछ भी अपनी तरफ से कह सकते हैं, वही कुछ कीजिएगा जो आप कर सकते हैं। अगर आप खुदा के हुजूर 5 मिनट देना चाहते हैं तो आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। कह सकते हैं खुदावंद मैं आज के बाद तुझे 5 मिनट दूंगा और ये 5 मिनट मैं मुकद्दसों के लिए दुआ करूंगा ताकि उनको तेरा कलाम आसमान पर से उनकी जिंदगी में जारी हो। खड़े होंगे वही। और वो लोग जो ये चाहते हैं कि खुदावंद मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा तेरे हुजूर दूंगा और मैं उस हिस्से में तेरे हुजूर से बरकत पाना चाहता हूं, वो अपने कदमों पर खड़े हों। अब वो अपने कदमों पर खड़े हों जो ये चाहते हैं कि खुदावंद तेरे लोग जहां कहीं भी खिदमत के लिए जाएंगे मैं उनके लिए रोजा रखूंगा। और याद रखिए ये पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर वक्त मिला तो कभी आपको एक एक पॉइंट पर मैं आपको सिखाऊंगा और खुदा का बंदा पास्टर सुलेमान आपको सिखाएंगे। हम कलीसिया को आगे लेकर जाना चाहते हैं। आइए हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आइए हम कलीसिया का हिस्सा बनते हैं। आइए हम अपनी टीम का हिस्सा बनते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर खुदावंद आपके लिए कलाम करता है, रात को कलाम करता है, अगर वो आपके लिए दिन को कलाम करता है, तो याद रखिए आपके पास इससे बड़ी बरकत पूरी दुनिया में नहीं है कि आपके खादम के साथ खुदा आपकी जिंदगियों के लिए कलाम करता है।
समझ लीजिए कि आपके पास अमाल की